Good morning, students. Today we will going to start our next topic of this chapter. So today we will discuss latitude and longitudes, and this is our second lecture. So let's start. Yes, students. So first of all, we will study important parallels of latitudes. Okay. So in our previous lecture, we have already studied about the parallels of latitudes. So now besides the equator 0 degree, the north pole 90 degree north and south pole 90 degree south, there are four important parallels of latitude. First is Tropic of Cancer, 23.5 degree north in the northern hemisphere. And students, you can see in this figure, yes, 23.5 degree north, okay, in the northern hemisphere. This is the Tropic of Cancer. And second is Tropic of Capricorn, 23.5 degree south in the southern hemisphere, and you can see in this diagram, yes, this is a Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, 23.5 degree south. And the third is Arctic Circle at 66.5 degree north of the equator. Yes, you can see in this diagram, this is our Arctic Circle, 66.5 degree north, okay, north of the equator. And fourth is Antarctic Circle at 66.5 degree south of the equator, and you can see in this diagram 66.5 degrees south, this is our Antarctic Circle, okay, Antarctic Circle of the equator. तो ये हमारे क्या है, कुछ इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स हैं, फोर इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स हैं ये हमारे, ओके स्टूडेंट्स. So students, in this diagram you can see, yes, जो आपके पास ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो ये जितना भी एरिया है, ये हमारा होता है टॉरिड जोन. ओके, तो अभी हम बताएंगे ये टॉरिड जोन हम इन्हें क्यों कह रहे हैं, क्यों इनके बारे में अभी हम आगे स्टडी करेंगे. दिस इज आर टॉरिड जोन एंड यस, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल के बीच का जो एरिया है, दिस इज आर नॉर्दर्न टेम्परेट जोन, नॉर्थ टेम्परेट जोन. एंड यस, एंड आर्कटिक सर्कल से ऊपर का जो नॉर्थ पोल की तरफ तक का जो एरिया है, दिस इज आर फ्रीजर जोन. So students, yes, in this diagram, yes, this is our torrid zone, this is a no temperate zone, this is our south temperate zone, this is our north frigid zone, and this is our north south frigid zone. Okay, so ये हमारे क्या हैं, ये हमारे फोर important parallels of latitudes. Okay, so moving. Yes, now heat zones of the Earth. The midday sun is exactly overhead at least once a year on all latitude in between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn, and this area therefore receives the maximum heat and is called the torrid zone. So students, actually जो Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn के बीच में जितने भी सभी लैटिट्यूड हैं, उन पर 1 ईयर में 1 ईयर में कम से कम एक बार जो मिड डे सन होती हैं, वो बिल्कुल सिर के ऊपर होता है. सो दिस एरिया देयरफॉर रिसीव द मैक्सिमम हीट एंड इज कॉल्ड द टॉरिड जोन. इसीलिए जो है ये एरिया जो है वो मैक्सिमम हीट रिसीव करता है, और इसे हम क्या बोलते हैं, टॉरिड जोन कहते हैं. So students, now you can see in this figure the area covered by the sun rays. So at the center the area heated is less compared to the poles, and where the rays spread over a wide area. So hence the heat is more at the equator than at the pole. Okay, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर जो यस, ये आपका सन है और इसकी जो रेंज है वो आपके अर्थ पर पड़ रही है, और आप यहाँ पर देख रहे हैं तो इसका जो बीच वाला एरिया देख रहे हो, बीच अर्थ के बीच सेंटर में जो पोल के नीचे अर्थ के सेंटर पर यहाँ पर जो रेस पड़ रही हैं,
तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सन रेज स्प्रेड ओवर अ नैरो जोन, ओके। और जैसे जैसे पोल की तरफ जाएं तो सन रेज स्प्रेड ओवर अ वाइड एरिया, okay, northern area and in southern area you can say you can see sun rays pole के पास sun rays spread over a wide area, okay। तो यहाँ पर जो हीट है, यहाँ पर हीट टेम्परेचर कम होगा, हीट कम होगी, जबकि जो सेंटर वाला एरिया है वहाँ पर सन रेज जो पड़ रही हैं वो नैरो एरियाज में है, और यहाँ पर हीट आपको ज़्यादा फील होगी, यहाँ पर हीट ज़्यादा ये एब्जॉर्व करता है। तो स्टूडेंट्स जो ये जहाँ पर हीट ज़्यादा होती है, जो ये बीच का जो सेंटर का एरिया है आपका, तो ये कौन सा एरिया है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, इस वाले एरिया के ऊपर साल में एक बार जो है मिड डे जो सन होता है वो बिल्कुल सिर के ऊपर आता है, और इसीलिए ये कौन, इसे हम क्या बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है तो ये हमारा क्या होता है, टोरिड जोन, ओके। एंड ये जो डायग्राम है ये स्टूडेंट्स, ये आपके पास आपके बुक में ये दिया हुआ है, जिसके अंदर ये दिखाया हुआ है कि कैसे जो टॉर्च की लाइट होती है जब हम उसको एक स्ट्रेट सरफेस के ऊपर डालते हैं तो वो ज़्यादा ब्राइट होती है और वो स्मॉलर एरिया को कवर करती है, लेकिन जब आप टॉर्च लाइट को एक स्लांटिंग सरफेस के ऊपर डालते हैं तो वहाँ पर वो बिगर एरिया को कवर करती है, और वहाँ पर जो ब्राइटनेस होती है वो भी कम होती है, okay। Yes students, so next is the midday sun never shines overhead on any latitude beyond the tropic of Cancer and tropic of Capricorn। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बाद किसी भी किसके ऊपर, किसी भी लैटिट्यूड पर जो मिड के टाइम पर दोपहर के का जो सन है वो कभी भी आपके सिर के ऊपर, ओवरहेड सिर के ऊपर नहीं होता है, ओके। सो इसीलिए क्या है, सो द एंगल ऑफ द सन्स रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टूवर्ड्स द पोल्स। तो क्या हो रही है, इसीलिए पोल की तरफ जो सन की रेज हैं वो स्लांटिंग होती हैं, okay। And as such the area is bounded by the tropic of Cancer and the Arctic circle in the northern hemisphere and the tropic of Capricorn and Antarctic circle in the southern hemisphere have moderate temperature। इसीलिए हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ओके, और जो हमारा आर्कटिक सर्कल है, ठीक है, आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, और दूसरा साउथ साउथ में, और दूसरी तरफ जो हमारा क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और जो हमारा आर्कट ये अंटार्कटिक सर्कल है, उनके बीच का जो एरिया है उसका जो टेम्परेचर है वो मीडियम रहता है, और इसीलिए यस, एंड दीज आर देयरफॉर कॉल्ड टेम्परेट जोन, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, टेम्परेट जोन कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि इनके ऊपर जो है एकदम इनके ऊपर कभी भी, जैसे कि आपको अभी मैंने पिछले उसमें बताया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, इसके ऊपर साल में एक बार सन की सीधी जो रेज हैं वो पड़ती हैं, लेकिन ऐसी सीधी रेज कभी भी आपके जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच का एरिया है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के बीच का जो एरिया है उनके बीच में कभी भी नहीं पड़ती, इसीलिए यहाँ पर जो हमेशा जो यहाँ का टेम्परेचर होता है वो मीडियम होता है, और इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये टेम्परेट जोन, यानी नॉर्थ टेम्परेट जोन एंड साउथ टेम्परेट जोन, क्लियर। Now, areas lying between the Arctic Circle and North Pole in the northern hemisphere and the Antarctic Circle and the South Pole in the southern hemisphere are very cold. Yes, students, you can see in this diagram. So, जो आपके पास क्या है, जो एरिया है किस किस के बीच का, आर्कटिक सर्कल और जो नॉर्थ पोल, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो नॉर्थ पोल है उसके बीच का जो एरिया है, जो ये बीच का एरिया है, और दूसरी तरफ जो अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल,
साउदर्न हेमिस्फीयर में साउथ पोल जो है उनके बीच का एरिया है वो काफ़ी क्या रहता है, कोल्ड रहता है, वो ज़्यादा ठंडा होता है। एंड इट इज़ बिकॉज हियर द सन डजंट राइज मच अबव द होरिजोन। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, तो क्योंकि यहाँ पर जो सन की जो रेज है वो ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाती हैं, ज़्यादा ऊपर तक नहीं आ पाती, सो दीज आर देयरफॉर कॉल्ड फ्रीजिड जोन। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, फ्रीजिड जोन। ठीक है, वेरी कोल्ड। सो क्लियर स्टूडेंट्स? सो मूविंग ऑन नेक्स्ट स्लाइड। Yes students, so now we will discuss what are longitudes. So to fix the position of place, it is necessary to know something more than the latitude of that place. किसी भी प्लेस की पोजीशन को बताने के लिए उस प्लेस के लैटिट्यूड के अलावा कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। एंड यू कैन सी, for example, that Tonga Island in the Pacific Ocean and Mauritius Island in the Indian Ocean are situated on the same latitude, that is 20 degrees south. जैसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें कि जो टोंगा आइलैंड, पैसिफिक ओशियन में टोंगा आइलैंड और इंडियन ओशियन में मॉरिशस आइलैंड जो है वो सेम लैटिट्यूड के ऊपर सिचुएटेड हैं 20 डिग्री साउथ पर। So now in order to locate them precisely, we must find out how far east or west these places are from a given line of reference running from the North Pole to the South Pole. So students, उनकी इस सही पोजीशन को जानने के लिए ये पता करना होगा कि जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ने वाली रेफरेंस लाइन से ईस्ट या फिर वेस्ट की और उन प्लेसेस के क्या जो डिस्टेंस है वो कितना है। सो स्टूडेंट्स, यू कैन सी इन दिस फिगर, यस दीज आर रेफरेंस लाइंस। ओके, और आप देख रहे हैं ये क्या कर रही हैं, ये रेफरेंस लाइंस जो हैं ये आपको नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ रही हैं, ये रेफरेंस लाइंस। ओके, एंड स्टूडेंट्स, एंड दीज लाइंस ऑफ रेफरेंसेस आर कॉल्ड द मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। और ये जो रेफरेंस लाइंस हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। Okay, and the distance between them are measured in degree of distances. और इनके बीच के देखो, ये इन रेफरेंस लाइंस के बीच का जो डिस्टेंसेस हैं, ओके, इनको हम डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड में मेजर करते हैं। एंड ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स। हर डिग्री को आगे हम किस में, मिनट्स में, और फिर मिनट्स को सेकंड्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। And they are semicircle, and the distance between them decreases steadily forwards until it becomes zero at the poles where all the meridians meet. And students, you can see also ये जो हैं they are semicircles, ये semicircles में है, and ये सभी semicircles हैं, and the distance between them, और इनके बीच का जो distance है वो क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है। कैसे डिक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे ये पोल की तरफ जा रहे हैं, जैसे जैसे ये रेफरेंस लाइन पोल्स की तरफ जा रही हैं, इनके बीच का डिस्टेंस कम होता जा रहा है। एंड इट बिकम जीरो एट द पोल्स, और पोल्स के ऊपर जाकर ये क्या हो रहा है, जीरो हो जाता है। वेयर ऑल द मेरिडियन मीट्स, यू कैन सी नॉर्थ पोल के ऊपर जैसे आप देख रहे हो ये सब के सब मिल रहे हैं, एक दूसरे से मिल जाते हैं। ये सभी मेरिडियंस जो हैं ये वहाँ पर मिले हुए हैं, और यहाँ पर ये जीरो हो जाती है, 0 डिग्री हो जाती है। क्लियर? Yes, so now unlike balance of latitude, all meridians are of equal length.
So students, we have already studied about the parallel of latitude and you know that parallel of latitude जो होते हैं वो इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हुए उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो कम होता चला जाता है. बट ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ, लेकिन हमारे जो मेरिडियंस हैं वो हमेशा उनकी लेंथ इक्वल रहती है. सो इट वॉज डिफ़िकल्ट टू नंबर द मेरिडियंस, इसीलिए इन्हें सिर्फ नंबर्स में व्यक्त करना डिफ़िकल्ट था. So all countries decided that the count should begin from the meridian which passed through Greenwich where the British Royal Observatory is located. इसीलिए सभी कंट्रीज़ ने डिसाइड किया कि ग्रीनिच जहां ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी सिचुएटेड है से गुजरने वाले मेरिडियन से ईस्ट और वेस्ट की ओर काउंट स्टार्ट की जाए. ओके, सो दिस मेरिडियन इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन, और इस मेरिडियन को क्या कहा जाता है? प्राइम मेरिडियन. सो स्टूडेंट्स, यू कैन सी इन दिस डायग्राम दिस इज ग्रीनिच. ओके, एंड जो कि क्या कर रही है, यहाँ से हमारी जो मेरिडियन है यहाँ से पास हो रहा है ग्रीनिच से, और दिस इज आर प्राइम मेरिडियन. और इसे हम ये जो यहाँ पर जो मेरिडियन पास हो रहा है यहाँ से उस वो हमारा क्या कहा जाएगा, क्या कहा जाता है? प्राइम मेरिडियन. सो इट्स वैल्यू इज 0 लॉन्गिट्यूड एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 ईस्टवर्ड एज वेल एज 180 वेस्टवर्ड. सो स्टूडेंट्स, इसका जो वैल्यू है वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है लॉन्गिट्यूड है, और यहाँ से हम 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट तक काउंट करते हैं. So the prime meridian and 180 degree meridian divided the earth into two equal halves, and you can see in this diagram. Yes students, so अब ये क्या हो रहा है यहाँ पर जो हमारा जो मेरिडियन है ये प्राइम मेरिडियन है, ये 180 डिग्री मेरिडियन मिलकर हमारे यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर हमारे अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, जो कि क्या है, द ईदर्न हेमिस्फीयर एंड द वेदर्न हेमिस्फीयर. एंड यस, दिस इज आर ईदर्न हेमिस्फीयर यूरोप एंड दिस इज आर वेदर्न हेमिस्फीयर. ओके, तो ये क्या कर रहा है, ईदर्न हेमिस्फीयर एंड वेदर्न हेमिस्फीयर में ये हमारी अर्थ को डिवाइड कर रहा है इक्वल पार्ट्स में. एंड देयरफॉर द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज फॉलोड बाय लेटर ई फॉर द ईस्ट एंड द डब्ल्यू फॉर द वेस्ट, एंड यू कैन सी इन दिस डायग्राम. यस, देखिए ये यहाँ पर जो हमारा इधर हेमिस्फीयर है उसमें ये लेटर ई से हम लोग इसे डिनोट करते हैं, और जो वेदर हेमिस्फीयर में डिवाइड हुआ है अर्थ वहाँ पर हम डब्ल्यू लेटर से इसे दिखाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो आपने जैसे यहाँ पर देखा कि किसी भी प्लेस के जो क्या है जो मेरिडियन है लॉन्गिट्यूड हैं उनके आगे हम ईस्ट के लिए ई वर्ड का यूज़ करते हैं और वेस्ट के लिए डब्ल्यू वर्ड का यूज़ कर रहे हैं. So it is however interesting to note that 180 degree east and 180 degree west meridians are on same line. और यहाँ पर ये जानना बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा कि 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियन एक ही लाइन पर क्या है, एक ही लाइन पर ये मिलते हैं. ओके स्टूडेंट्स, now look at the grid of the parallels of the longitude, latitude and meridian of longitude on the globe. So students, you can see in this diagram, okay, and you can locate any point on globe very easily if you know its latitude and longitude. अब ये हमारे पास एक ग्रिड दिया हुआ है जिसमें हमारे पास longitude and latitude जो है ओके वो हमें यहाँ पर दिए हुए हैं. अब वो ये कह रहा है कि अगर आपको किसी भी प्लेस के लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का सही इंफॉर्मेशन है आपके पास, तो आप इस ग्रिड पर, आप ग्लोब पर उस प्लेस का पता जो है आसानी से लगा सकते हैं. Yes, so for example, Dhubri in Assam is situated at 26 degree north latitude and 90 degree east latitude. Find out the point where these two lines
कट ईच अदर। तो यहाँ पर वो बता एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे डुबरी, असम में डुबरी जो कि 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में जो है सिचुएटेड है। तो अब हमें वो पॉइंट बताना है जहाँ पर ये दोनों लाइंस, यस फाइंड आउट द पॉइंट, वो पॉइंट बताना है वेयर दिस टू लाइंस कट ईच अदर, जहाँ पर ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं, एंड दैट पॉइंट विल बी द लोकेशन ऑफ डुबरी। तो वो जो है हमारे पास पॉइंट कौन सा होगा, डुबरी का होगा। तो स्टूडेंट्स यू कैन सी इन दिस डायग्राम, यस आपको पता है दिस इज आर इक्वेटर लाइन एंड प्राइम ऑफ मेरिडियन। ओके, प्राइम ऑफ मेरिडियन से हम क्या करते हैं, प्राइम ऑफ मेरिडियन से हम लोग जीरो डिग्री लेके चलते हैं और उसके ईस्ट की तरफ से, ईस्ट की तरफ हम 180 डिग्री तक जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो हम प्राइम मेरिडियन से ईस्ट की तरफ 90 डिग्री तक जाएंगे, और ऐसे ही हम लोगों को क्या दिया हुआ है, 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड अब इक्वेटर से हमने देखा था, इक्वेटर से हमने आगे देखा था 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसमें आपके पास क्या था, आपके पास जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था, ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो उससे थोड़ा सा ऊपर आपने 26 डिग्री नॉर्थ पर जाना है। ओके, और उधर से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे और इधर 90 डिग्री तक जाएंगे, तो हमारे यहाँ पर नियर अबाउट इस पॉइंट पर, यहाँ पर पॉइंट पर आपके पास डुबरी जो है वो आपको मिल जाएगा। ओके, उसकी सिचुएशन, उसकी लोकेशन यहाँ यहीं पर होगी। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम लोग जो है, अगर हमें लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड के सही मतलब हमें उनके बारे में इंफॉर्मेशन पता है, तो हम किसी भी प्लेस को हम यहाँ पर ग्लोब पर सिचुएटेड कर सकते हैं, उसको वहाँ पर दिखा सकते हैं उसकी पोजीशन को। And to understand this clearly, draw equidistant vertical and horizontal line on a paper. Level the vertical rows with numbers and horizontal rows with letters, and draw some small circles randomly on points where these horizontal and vertical line intersect each other. So name these small circles as A, B, C, D, E, and D. So let vertical lines represent east longitude and a horizontal line as a north latitude. So now you will see that circle A is located on B degree north latitude and 1 degree east longitude. ओके, तो आप ये एक अपनी तरफ से आप एक ये प्रैक्टिस करके देख सकते हैं घर पर कि आपका आप सही जो पॉइंट जो है, सही लोकेशन जो है वो बता सकते हैं या नहीं। ओके, सो स्टूडेंट्स एंड इन दिस फिगर यू कैन सी दिस इज आर इक्वेटर, प्राइम मेरिडियन। ओके, तो जो इक्वेटर है वहाँ से हमारे आते हैं लैटिट्यूड्स, और जो प्राइम मेरिडियन है उधर से ईस्ट या वेस्ट की तरफ हो जाते हैं लॉन्गिट्यूड। क्लियर? यस, नाउ स्टूडेंट्स यू कैन सी इन दिस डायग्राम, ये जस्ट आपको एक डायग्राम्स दिखाए गए हैं जहाँ पर सिर्फ ये दिखाने के लिए कि इक्वेटर, प्राइम मेरिडियन, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड जो यहाँ पर दिखाए गए हैं, इससे आपको सबको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमारा एक जो हमारा जो ग्लोब होती है, अर्थ जो है, उस पर कहाँ इक्वेटर है, कौन सा इक्वेटर होते हैं, प्राइम मेरिडियन कौन से हैं, प्राइम मेरिडियन कौन सा है, और लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, ये सब यहाँ पर आपको क्लियरली यहाँ पर दिख जाएगा। तो यहाँ पर एक और मैंने आपके लिए डायग्राम लिया है, फिगर ली है, जिसके अंदर आपको इजली पता चल रहा है प्राइम मेरिडियन क्या है, मेरिडियंस हमारे कौन से होते हैं, इक्वेटर्स हमारे क्या है। ओके, so I think students it is clear now, so that's all for today. Have a good day.